I would like to discuss about the vector analysis. First of all, I would like to introduce myself. Is Dr. L.P. Verma. So let us enjoy with the vector analysis. So first of all, I would like to tell you how the concept of vector will come in the physics. जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में विभक्त किया गया है. द फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वेक्टर एंड स्केलर. दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन is treated as the vector quantity, wherever some physical quantity only having their magnitude is called scalar quantity. अब हमारे बच्चे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अंतर नहीं कर पाते. इसको समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन 20 मीटर इन ईस्ट. So 20 meter is the magnitude and east is the direction. So it consists of both the magnitude as well as the direction. Therefore, this quantity is treated as vector. Wherever only 20 meter, but you have no idea in which direction we can measure this 20 meter. Therefore, such quantity is called a scalar quantity. If you are going to the higher classes, the sum of the physical quantity which cannot be fully described by the vector or as well as the scalar. Therefore, it needs of another quantity called tensor. Usually, vector are written in the bold face. बड़े लेटर, अल्फाबेट के बड़े लेटर से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. And their component with their suffix corresponding to 3 dimensions, 3 directions, x, y, z. Let us see in the slide. For example, here y is a vector and their components corresponding to x, y, z directions are y1, y2, y3. And if you can multiply by any scalar quantity to the vector quantity, for example, in a y, so its value becomes ay, just simply multiply. But this multiplication of the scalar quantity are also in the each component of the vector quantity. For example, y can be written as in a mode a y1, a y2, a y3. If there are two vectors x and y and two scalar quantities multiplied a and b and then take their sum, the very simple ay plus bx, and their representation in the form of matrices becomes ay1 plus bx1, ay2 plus bx2, ay3 plus bx3. इस तरह से हम अनेक तरह के वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. अब हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य बात यह है कि वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं. तो वेक्टर के साथ हम दो तरह के प्रोडक्ट का साइन यूज करते हैं. वन इज द डॉट प्रोडक्ट एंड अदर इज द क्रॉस प्रोडक्ट. सो इफ द टू वेक्टर in between there is a dot product. For example, you see in the slide a dot b. This is called dot product and this is a scalar product. Why its name is a scalar? Very interesting. You see a dot b. This is a bold face, this is a bold face. So vector multiplied together to get a normal face. It means that there is no vector symbol. It means that result is always a scalar quantity. Therefore, such product is called
a scalar product. Similarly, if you want to determine the mod of vector A, you will get that under root a1 square plus a2 square plus a3 square. Okay, and their vector representation can be sum of multiplication, and their sum is represented by this diagram. Let us see. Now, the vector product means two vectors can be multiplied in such a way their result becomes a vector quantity. Such product is called vector product, and you see in the slide A cross B. Simply you can put the multiplication symbol in between the two vectors. You will get the vector product. And its result becomes, you can write down here in the determinant form, I, J, K are the unit vectors corresponding to x, y, z directions, and their component of vector A and B are A1, A2, A3, B1, B2, B3. In the determinant form, it can provide the value of A cross B. Now, what is the vector triple product, a scalar triple product? The scalar triple product can be defined as, for example, you have seen here A cross B is a vector product, and if there are three vectors A, B and C, we can arrange in such a way dot and cross product, the result becomes a scalar. Let us see here A dot B cross C, the result becomes a scalar. Why? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ब्रैकेट के अंतर्गत ये जो B क्रॉस C है, इसे हम वेक्टर आएगा, और जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट A वेक्टर के साथ लेंगे तो रिजल्ट बिकम ए स्केलर क्वांटिटी. Therefore, its name is a scalar product of three vectors. और इसको डिटर्मिनेंट के रूप में इनके कंपोनेंट के साथ में आसान तरीके से हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि स्लाइड में दिखाया गया है. A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू inside the determinant A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, where these are the components of vector A, B and C. उसी प्रकार से अब वेक्टर का हम अप्लाइड रूप कैसे देखेंगे. अनेक तरह के हमारे पास ऐसी फिजिक्स में समस्याएं आती है कि हाउ टू अप्लाई दिस वेक्टर एंड टू गेट देयर clocks and their rotation in their different forms by using some operator. So here we used a operator, del operator, called this triangle, opposite triangle is the del operator, and if del operator which can operate on a scalar function, which can operate on a scalar function phi, the product becomes gradient of function phi. This is called gradient of function phi. Simply it means that gradient. Gradient क्या होता है समझना बहुत जरूरी है, तभी इसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. ग्रेडियंट को हम सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी भी हम फिजिक्स की क्वांटिटीज को जानते हैं, यदि जैसे टेम्परेचर है, वेलोसिटी है, प्रेशर है, इनका वेरिएशन यदि स्थान परिवर्तन के साथ वेरिएशन हो रहा है, इट मीन्स दैट द वेरिएशन ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटी with respect to distance is called gradient of that quantity. For example, temperature gradient dt by dx, pressure gradient dp by dx, velocity gradient dv by dx. उसी प्रकार से डेल फाई है तो हम कहेंगे कि ये एक ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई है.
और डेल ऑपरेटर को यहाँ पर हम मैट्रिसेस के रूप में लिख सकते हैं कि डेल इज इक्वल टू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। द मीनिंग ऑफ दिस डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज, दिस इज द मैथमेटिकल एब्रेविएशन। मैथमेटिक्स में शॉर्ट फॉर्म करके पार्शियल डिफरेंशियल को लिखा गया है, जिसे पूर्ण रूप से हम इस प्रकार लिखेंगे, डेल एक्स का मतलब डेल बाई डेल एक्स। एंड क्योंकि दिस इज in operator corresponding to 3 axis, it can open, so its value becomes I del upon del x plus j del upon del y plus k del upon del z. This is called नेबुला ऑपरेटर also. इसे डेल ऑपरेटर और नेबुला ऑपरेटर के नाम से हम जानते हैं। अब वेक्टर फील्ड क्या होता है? जैसे वेक्टर फील्ड किसी भी चीज का एक अपना फील्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि एक आप चुंबक लेते हैं, मैग्नेट, और उसके पास लोहे के टुकड़े को आप जब लाते हैं तो ये देखते हैं कि लोहा का टुकड़ा जब उसके समीप आता है तो अपने आप आकर्षित हो जाता है। तो ऐसे फील्ड को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। उसी प्रकार से कुछ हमारे वेक्टर के ऐसे क्वांटिटी हैं जिनका अपना फील्ड होता है, तो जहां पर तक उनका प्रभाव रहता है उसको कहेंगे वेक्टर फील्ड। जैसे इस स्लाइड में हम देखेंगे कि वेक्टर में ये जो हमारा नेबुला ऑपरेटर है या डेल ऑपरेटर है, किस प्रकार से हम ऑपरेट कराएं कि वो क्या बन जाए। जैसे अभी आपने देखे कि डेल ऑपरेटर स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट किया, तो इसे हम ग्रेडियंट कहेंगे। अब वही नेबुला या डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे डाइवर्जेंस। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि डेल डॉट वी लिखा गया है, तो डेल डॉट वी, और इसका जब हम आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू डेल एक्स वी एक्स, डेल वाई वी वाई, डेल जेड वी जेड आएगा। और ये रियल में क्या बताता है? दिस इन रियल मीनिंग इट रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम ए सेक्शन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। डाइवर्जेंस मीन्स इमर्जेंस ऑफ फ्लक्स। उसी प्रकार से देखिए, बहुत यहाँ पर एक माइनर डिफरेंस है। डॉट प्रोडक्ट के जगह पर यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें तो इसका नाम बदल जाता है, और इसको इस रूप में हम फिर लिखते हैं डेल क्रॉस वी, और इसे हम पढ़ते हैं कर्ल ऑफ वी या कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड वी। और इसे सिंपल तरीका है लिखने का, जैसा कि अभी आपने दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े और उसे कैसे डिटर्मिनेंट के रूप में हम लिखते हैं, उसी प्रकार से हम इसे भी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे ये यूनिट वेक्टर आई जे के इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और फिर ये डेल ऑपरेटर के तीनों कंपोनेंट हो गए, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और फिर वेक्टर v के कंपोनेंट हो गए। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस डिटर्मिनेंट इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिसेस। तो इस प्रकार भी इसे लिखा जा सकता है। और व्हाट इज द रियल एंड फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कर्ल का ये मतलब है कि हाउ मच इज द रोटेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। हम जिस वेक्टर फील्ड का बात कर रहे हैं उसका रोटेशन कितना संभव है, वो कर्ल के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं। अब ग्रीन्स थ्योरम है। बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल ग्रीन्स थ्योरम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज that theorem where the divergence of a vector field A, the volume integral of divergence of a vector field A is equal to the surface integral of a curl of A। और उसी तरह से जब हमारा वेक्टर फील्ड A आता है
तो ए को हम एक दूसरे रूप में, जैसे वेक्टर फील्ड ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर फंक्शन phi1 एंड ग्रेडियंट ऑफ phi2। तो जब इस प्रकार के हम वेक्टर फील्ड का चुनाव करेंगे, एंड you can, after the calculation, you should put into the Gauss theorem, you will get the first kind of Green's theorem, and just simply you can interchange the scalar functions phi1 to phi2 and phi2 to phi1, and then subtract to the earlier equations, you will get the final Green's theorem. So let us see the another form of the Green's theorem also can exist as like this. So let us enjoy with the George Green. The Green's theorems given by the George Green, and George Green born in July 14, 1793, and he was died on May 31st, 1841. He is a British mathematician and physicist. He was a first person try to explain a mathematical theory of electricity as well as the magnetism. ये पहला इनका एक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन करके इफेक्ट देने का इन्होंने प्रयास किए, और जो आज तक हम लोगों ने इसे पढ़ रहे हैं। और एंड his theme was published as an essay on the application of mathematical analysis to the theories of electricity and magnetism in 1828. बहुत पहले इन्होंने ऐसा आविष्कार किए थे। द इंटर्ड कैम्ब्रिज, इंटर्ड एंड ही इंटर्ड इनटू द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। आप सभी जानते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत कम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है यहाँ तक पहुँचने का। एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन 1833 एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो विदेशों में 40 ईयर्स में, जैसा कि आपने देखा कि अंडर ग्रेजुएट की डिग्री जॉर्ज ग्रीन ने प्राप्त करके इतनी बड़ी थ्योरी को आविष्कार किए। द थ्योरी कंसीडर ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। यहाँ पर एक हमने कर्व दिखाए हैं जो एक एरो के द्वारा साइकिल करके क्लोज बनाया गया है। एंड लेट डी बी ए रीजन इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व। ये देख रहे हैं कि डी एक ऐसा रीजन है जो कर्व के अंतर्गत आता है। द सिंपल क्लोज्ड कर्व हैज नो होल्स इन द रीजन डी। A direction has been put on the curve with the convention that the curve C has a positive after positive orientation if the region is on the left as we traverse the path. अब इस तरह के एग्जाम्पल, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग बहुत बिगिनिंग से पढ़ते आए हैं कि हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल, वेरी सिंपल, इफ द फोर्स इज गिवन एंड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स सम डिस्प्लेसमेंट इज कैरिड आउट, सो जस्ट सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यू विल गेट द वर्क डन। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर, बट वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन का चूज करना है कि क्या हम करें कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन स्केलर बन जाए। इट मीन्स दैट यू जस्ट गो थ्रू द डॉट प्रोडक्ट एंड यू विल गेट द रिजल्ट यू सी हियर। देखिए, जैसा कि आपने देखे यहाँ पर एक फोर्स दिया गया है
और करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। तो अब यहाँ देखेंगे कि वर्क डन यहाँ F.ds हो गया, लेकिन यदि ऐसे वर्क डन यहाँ पर एक इंटीग्रेशन लगाया गया है, यह इंटीग्रेशन प्रदर्शित करता है कि वर्क डन यदि कई एक पार्ट में हो रहा है, छोटे छोटे सेगमेंट पे हो रहा है, नाउ यू आर ट्राइंग to calculate the total work done. It means that you are going to sum each individual work done. So just you can take the integration of F.ds. You will get the total work done. Now direct computation you can also find out by this process. Just you can integrate it and get it like this, and you will get the result is equal to 72 pi by this process. Very simple. Now I would like to discuss the Green's theorem in another form, like कैसे हम अप्लाई करेंगे ग्रीन्स थ्योरम का एक रूप में। तो आप ये देख रहे हैं कि वर्क डन F.ds का इंटीग्रेशन है, जो कि डायरेक्ट ग्रीन्स थ्योरम का एप्लीकेशन है। हाउ दिस कैन बी इन अनदर फॉर्म, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाउ दिस फॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट इज द स्टोक्स थ्योरम, दिस इज आल्सो वेरी Stokes versus Green's theorem. Stokes theorem can be regarded as a higher dimensional version of Green's theorem. Green's theorem relates a double integration over a plane region D to a line integral around its plane boundary curve. Stokes theorem relates a surface integral over a surface S to a line integral around the boundary. जैसा कि आपने यहाँ देखा, ये कर्व में हमने बना रखे हैं कि यह एक सरफेस है और दिस इज द बाउंड्री लाइन ऑफ दिस. द फिगर शोज एन ओरिएंटेड सरफेस विथ normal vector n. The orientation of the S induces the positive orientation of the boundary curve C. This means that if you walk in a positive direction around C, जैसा कि इसमें देखिए एरो बना हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन around the C with your head pointing in the direction of N, the surface will always be on your left. Now the Stokes theorem in a mathematical form can be also explained. Let S be an oriented piecewise a smooth surface bounded by a simple closed piecewise a smooth boundary C with positive orientation. F be a vector field whose components have continuous partial derivative on an open region. The mathematically the line integral, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि dr लिखा हुआ है. dr means the variation of position vector. तो इसको हम लाइन इंटीग्रल से डिनोट करेंगे या क्लोज इंटीग्रल जैसे C बना हुआ है f डॉट dr. So the closed integral, the line integral of a vector field A is equal to the surface integral of curl of the vector field F dot ds. This is the mathematical statement. The line integral of a vector field F is equal to the surface integral of
कर्ल ऑफ एफ डॉट ds। ऐसा ये है कि लाइन इंटीग्रल को कैसे सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे। इस स्टोक्स थ्योरम का बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स में। The theorem is named after the Irish mathematical physicist सर जॉर्ज स्टोक्स। इनका पूरा नाम सर जॉर्ज स्टोक्स है, जिन्होंने 1819 में बॉर्न किए और he was died in 1903। What we call Stokes theorem was actually discovered by a Scottish physicist Sir William Thomson, known as Lord Kelvin. Stokes learned of it in later form, the Thomson in 1850. Now, this is the mathematical form, how the line integral converted into the surface integral, as well as the surface integral converted into the another type of the surface integral। और इस प्रकार से इनका एप्लीकेशंस इस प्रकार हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हमने बताया है कि एक लाइन इंटीग्रल है, उसे क्लोज हमने करने के बाद एफ डॉट डी एर निकाल लेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड एफ। और यहाँ पर इसे कैसे आप डायग्राम के रूप में सरफेस के रूप में कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर ये सरफेस दिखाया गया है एंड दिस इज ए क्लोज्ड कर्व, जो कि इस कलर से दिखाया गया है। आप देखेंगे, आपको पहले भी हमने बता रखे हैं कि कर्ल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। So first of all, you have the basic idea regarding the curl, then you can easily understand the Stokes theorem। जैसे यहाँ पर कर्ल को बहुत सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। आपको वेक्टर फील्ड एफ है जिसका कर्ल निकालना है, तो आई जे के यूनिट वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू 3 एक्सिस, और इस प्रकार से वेक्टर एफ के ये कंपोनेंट है। ऐसे लिख करके यदि हम डिटर्मिनेंट को ओपन करें तो यू विल गेट दैट 1 + 2y यूनिट वेक्टर। और इस चीज को हम यहाँ पर इस प्रकार भी कह सकते हैं कि देयर आर मेनी सरफेस विद द बाउंड्री सी। सरफेस को आप कई भागों में डिवाइड करके और स्टोक्स थ्योरम को आप प्रूव कर सकते हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट चॉइस दो इज द इलिप्टिकल रीजन एस। आप देख रहे हैं यहाँ पर इलिप्टिकल रीजन है, आपको चूज करने के यहाँ द प्लेन y + z = 2, that is the bounded by C। If we orient the surface S, आप अपने हिसाब से इसे ओरिएंट कर लीजिए। अपवर्ड C has the induced positive orientations, then you will get some another result। The projection D of S on the xy plane is the disk x² + y² less than or equal to 1। So with z is equal to function of g xy is equal to 2 - y, we have the following result।